Everyone, this is Professor Sanan Sari, and today we are going to discuss about the roles and functions of sales department. In our previous video, we have already discussed about the meaning of sales and the sales management, and we have already completed the definition according to AMA, American Marketing Association of Sales Management. So in this video, friends, we are going to learn about roles or you can say functions of sales department. ओके सो यहाँ पर हम जो है कुछ देखेंगे कि सेल्स डिपार्टमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं. वन बाय वन हम ईच एंड एवरी फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, बट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट इज़ देर आर total 7 functions and roles of sales department, so which we are going to discuss one by one. So first function of sales department is marketing research. See, first of all, you should know about the meaning of research and what is the meaning of market research. So basically research refers to study. रिसर्च का मतलब क्या होता है? स्टडी करना. एंड वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग रिसर्च, सो इट इज़ कॉल्ड एज स्टडी ऑफ मार्केट. ओके, इट मीन्स स्टडी ऑफ मार्केट. अब कौन से फैक्टर्स को स्टडी करना? वी कैन टेक लाइक all these things are include forecasting, intelligence और statistical data को prepare करना. That's all are just part of marketing research. Whenever we people are going to study about the market, so we need to be take care about the statistical data related to your contents, related to your topic, related to which whatever thing you want to study, you need to be do a deep marketing study, and we can say marketing research for it. So we have some other trends and factors and some fluctuations in the market. So before going to launch our product in the market for sales, we need to be take care about some changes and trends. So here we have some changes and trends in under the marketing research. ठीक है, सो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमको मार्केट का पूरा अच्छी तरीके से स्टडी करना होता है बिफोर गोइंग टू लॉन्च और सेल योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, or to exist or to continuously stand in market. You need to be do all these things very effectively. So as you can see on my screen, under the marketing research topic point, we have some sub points also, so that is just for your reference. ओके, सिर्फ मार्केटिंग रिसर्च में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप ये सारी चीज़ें याद रख सकते हो, या फिर सेक्युलर ट्रेंड, साइक्लिकल चेंजेस, सीजनल फ्लक्चुएशंस रेफर्स टू व्हाट, ये सारी चीज़ें यू नीड टू बी टेक केयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स फॉर योर ऑब्जेक्टिव पर्पस. ठीक है, सो व्हाट इज सेक्युलर ट्रेंड्स? सेक्युलर ट्रेंड्स मतलब वेन एवर द पॉपुलेशन विल इंक्रीज, सो ऑटोमेटिकली द डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है, सो वी नीड टू बी टेक केयर अबाउट दिस, क्योंकि अगर मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही, इफ़ आई एम गोइंग टू लॉन्च सम सोप या फिर मेडिकल शैम्पू या एनी फूड आइटम, सो आई नीड टू बी टेक केयर अबाउट द पॉपुलेशन साइज ऑल्सो. Then that is called as secular trends. Then we have cyclical changes. What do you mean by the cyclical changes? So these changes are due to agricultural crops या war situations जो create होती है हमारे यहाँ पे कंट्री में. So उसकी वजह से पूरा जो cyclical procedure होता है ना, वो थोड़ा dismiss हो जाता है, उसमें काफ़ी सारी changes आ जाती है. So that's all called as cyclical changes just because of war and some agricultural crops etc. Like अगर rainy season है, over रेन वाटर होने की वजह से क्या होता है, हमारे बहुत सारी क्रॉप्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो हमारा एक साइकिल होता है वो थोड़े टाइम के लिए डिसमिस हो जाता है. सो उसके अकॉर्डिंगली भी मुझे सारी मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा बिफोर गोइंग टू लॉन्च माई प्रोडक्ट इन द मार्केट. देन वी हैव सीजनल फ्लक्चुएशंस. एज यू कैन सी, सीजन के अकॉर्डिंगली भी कुछ फ्लक्चुएशंस आती है आपके डिमांड में. जैसे राइट नाउ इट इज़ अ रेनी सीजन, जो डिमांड फॉर अम्ब्रेला एंड रेन कोट्स, विंड शीटर्स आर वेरी हाई बिकॉज इट इज़ अ सीजनल प्रोडक्ट, इट इज़ अ सीजनल product. Like we can take the example of festive products also. जैसे अगर festive buying बहुत ज़्यादा होता है, अगर कोई फेस्टिवल है लाइक दिवाली है या फिर क्रिसमस है या फिर ईद हो, सो उसके अकॉर्डिंगली भी हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाइक क्लोथ हो गया या फिर स्वीट्स वगैरह हो गए, इसका डिमांड बहुत ही हाइक पे चले जाता है. सो इसको भी स्टडी करना है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट बना रही हूँ. अगर मैं कोई स्वीट्स का प्रोडक्शन करना चाह रही हूँ, उसका शॉप मार्केट में ओपन करना चाह रही हूँ, सो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन से सीजन में ओपन करूँ ताकि मैं फेमस हो चुकूँ इन द मार्केट. Then we have nature of product. Exactly, your nature of product will also depend. See, there are two types of products, or I can say products are classified into two types, that is consumer goods and one is capital goods. So
ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट द कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, जैसे कि फूड आइटम्स हो गए, टॉयज़ हो गया, शूज़ हो गया, क्लोथ्स हो गया, पेपर्स हो गया, पेंसिल। डेली रूटीन में वी पीपल आर यूजिंग मैनी एंड लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, सो दीज प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अनदर वन वी हैव, अनदर कैटेगरी वी हैव, दैट इज कैपिटल गुड्स. So what do you mean by the capital goods? It includes long time investment wale goods like machineries, machines, equipments, plant. All these things are coming into the कैपिटल गुड्स. तो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, प्रोडक्ट का क्या नेचर है उसके अकॉर्डिंगली भी आपको स्टडी करना है कि इफ़ आई एम गोइंग टू लॉन्च एनी कैपिटल गुड, अगर मैं कोई मशीनरी वगैरह का डेवलपमेंट कर रही हूँ, सो मार्केट में मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या है, क्योंकि वी हैव सेकंड पॉइंट दैट इज़ कॉम्पिटिशन ओनली. सो कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंगली भी हमें गो थ्रू करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा कॉम्पिटिटर किस तरीके से सर्विसेज दे रहा है. लाइक अगर जैसे डव और लक्स सोप है, तो इनका डिज़ाइन क्या है, इनका फ्रेग्रेंस क्या है, इनका साइज़ क्या है, इनका शेप क्या है, इनका कलर क्या है. सो उसके अकॉर्डिंगली मुझे लॉन्च करना पड़ेगा ताकि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सके अपने सब्सटीट्यूट को और ईजिली मार्केट में सर्वाइव कर सके. देन वी हैव गवर्नमेंट एक्शंस. सो गवर्नमेंट एक्शंस भी पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि अगर समझो कि अगर आपने प्रोडक्ट ऐसा बनाया जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में भी यूज़ होता है, सो यू नीड टू पे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, और ऑल ऑफ यू नो दैट वी हैव टू पे द टैक्सेशन ऑल्सो, एंड टैक्सेशन इज जस्ट अ गवर्नमेंट पॉलिसी. So we have completed the marketing research वाला point here, ठीक है. दैट इज़ ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट. सेल्स डिपार्टमेंट अगर 100 पीपल का टीम है, सो उसमें से 10 बंदों की टीम अलग से होती है जो मार्केटिंग का रिसर्च करती है, और रिसर्च ये सारे फैक्टर्स पे करती है, ट्रेंड्स या जो भी फ्लक्चुएशन या चेंजेस हो रही है, प्रोडक्ट क्या है, कॉम्पिटिशन क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है, उस पर रिसर्च करती है सेल्स डिपार्टमेंट में मार्केटिंग रिसर्च वाला टीम. देन वी हैव सेकेंड पॉइंट भी है हमारे पास, जैसे कि आप देख सकते हो. जस्ट गिव ए मिनट. या सो वी हैव सेकेंड पॉइंट, एंड सेकेंड पॉइंट दैट इज advertising of sales. As you know that advertising is a very important part, because if you have launched the product, so second thing you need to be advertise your product. You need to be know your customer that are related to your product. योर कस्टमर शुड बी अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट. आपके कस्टमर को पता होना चाहिए कि आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया. आपका जो टारगेट ऑडियंस है, इफ़ यू हैव प्रोड्यूस्ड टॉयज़, सो यू हैव टू अट्रैक्ट द किड्स. इफ़ यू हैव प्रोड्यूस्ड फैशनेबल products like shoes, clothes, so you have to attract the youngsters, ठीक है. So as it is, so how you can attract your target audience, you need to be do effective advertisement for it. और आप सेल करना चाहते हो, तो अल्टीमेटली यू हैव टू शो सम ऑफर्स, यू हैव टू यूज सम ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर टू प्रोड्यूस और टू प्रमोट योर प्रोडक्ट. देन वी हैव सेल्स. दैट इज़ ऑल अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आपको पता ही है कि हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो आर मैंडेटरी थिंग, या फिर मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल ऑफ माई प्रोडक्ट. सो सेल्स प्रमोशन करना. सेल्स प्रमोशन करने के लिए आप किस तरीके से कर सकते हो, इमीडिएट सेल कैसे हो सकता है, क्रेडिट सेल कैसा हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है. ये सारा फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? सेल्स डिपार्टमेंट की एक टीम होती है जो एडवर्टाइज करेगी और दूसरा सेल्स को प्रमोट करेगा. देन वी हैव सेल्स करस्पॉन्डेंस. अगर सेल्स करस्पॉन्डेंस में क्या होता है, इफ़ यू आर गोइंग टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट योर सेल्स, या फिर आप इनसाइड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है और आउटसाइड द कंट्री भी होता है. आउटसाइड द कंट्री पे आपको एक्साइज ड्यूटी या वगैरह ये सब पे करनी होती है, बट अगर आप इनसाइड कर रहे हो बेटा, सो यहाँ पे क्या होता है, सेल्स करस्पॉन्डेंस होते हैं. सेल्स करस्पॉन्डेंस मतलब आपको एक प्रॉमिसरी नोट्स प्रिपेयर करनी होती है जिसमें आप मेंशन करते हो कि सो एंड सो डेट को आपको इतने नंबर्स ऑफ यूनिट्स जो है सप्लाई करने हैं सामने वाली पार्टी को. सामने वाली पार्टी को अगर आपसे प्रोडक्ट चाहिए आपकी कंपनी का, सो उसने भी रिटर्न में देना होता है. रिटर्न में जो वर्क होता है ना एट द टाइम ऑफ सेलिंग आवर प्रोडक्ट, दैट इज ऑल कॉल्ड एज सेल्स करस्पॉन्डेंस. देन वी हैव सर्विसेज. व्हाट डू यू मीन बाय द सर्विसेज? सो सर्विसेज आपको पता ही है, प्रोडक्ट को सेल करना, कस्टमर नीड टू एन्जॉय योर सर्विसेज. सो सर्विसेज इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेल्स इटसेल्फ. सेल्स में सबसे एसेंशियल पार्ट होता है सर्विस. आप समटाइम क्या होता है, प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं बट फिर भी आप किसी एक कंपनी को क्यों चूज़ करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ सर्विसेज. हो सकता है कि मार्केट में बहुत अच्छा सोप आया है, सेम प्राइस पे आया है, लेकिन आपके प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी है ही नहीं मार्केट में. मतलब आप प्रोडक्ट का प्लेसिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हो, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर नहीं कर रहे हो. सो यहाँ पे क्या आएगा, सर्विस आप प्रॉपरली नहीं दे रहे हो. सो यू नीड टू बी गिव अ प्रॉपर सर्विसेज टू योर कस्टमर ऑल्सो. एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी सेल्स डिपार्टमेंट एक अलग से टीम बनाता है जो प्रॉपरली सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बैठती है. Then we have packaging. So as you know that packaging is a very important part of our sales.
वेन एवर वी पीपल आर गोइंग टू सेल आर प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट के टाइप्स अलग होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली इनकी पैकेजिंग भी अलग होती है। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो पेपर रैप किए जाते हैं, कुछ होते हैं टिन या कंटेनर में उनको स्टोर किया जाता है, कुछ होते हैं क्लोथ पैकेजिंग होती है जिनकी, कुछ होते हैं जिनको हम कार्डबोर्ड के थ्रू करते हैं, कुछ होते हैं जो प्लाईवुड में होते हैं, कुछ होते हैं जिनका प्लास्टिक से पैकेजिंग किया जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका वुडन पैकेजिंग किया जाता है। जैसे मैंगोज एंड फ्रूट्स वगैरह को देखते हुए वुडन बॉक्स होते हैं, उनमें से स्टोर किया जाता है। सो पैकेजिंग आर वेरी डिफरेंट एज पर द प्रोडक्ट नेचर। Okay, and the last and very important, that is warehousing. If we have reduced our product, we have properly packaged it, and we are doing proper advertisement for our product, so you need to be store your product. Warehousing is nothing but to store your products in the store or godowns. ठीक है, सो आपको इस तरीके से क्या करना पड़ता है, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर प्रोडक्ट प्रॉपरली वेयर हाउस किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, सो फ्यूचर डिमांड को वी कैन ईजिली फुलफिल। ठीक है, सो वी हैव completed this topic here. If anybody have any doubt and difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel. That's all enough for today. Bye bye, have a nice day, take care.